हुआ कुमार नहीं वो फोटो ही है. Everybody silence please. प्रशांत म्यूट करिए सबको. Everybody is muted, sir. Recorder is still not on. Prashant. Yes, sir. So we can go live in 10 seconds. We can start. Oh. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हमने डायलॉग विद इंडियन एंड ग्लोबल थॉट लीडर्स सीरीज में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और विख्यात अर्थशास्त्री नोबेल विजेता श्री अभिजीत बैनर्जी के बीच बातचीत देखा। इसी से संबंधित है आज की हमारी एआईसीसी ब्रीफिंग। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुश्री सुष्मिता देव। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ब्रीफिंग शुरू करें। Can you hear me, everybody? जी, go ahead. हाँ. Okay, नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। I hope all of you are well and healthy. Today at 9 a.m., we watched an invaluable interaction between former Congress President Rahul Gandhi ji, Member of Parliament from Kerala, and Dr. Banerjee, who is a renowned economist, and I think the entire world respects him for the work he's done in the past. We know he's won the Nobel Prize also. What the idea behind this press meet is, Congress party has consistently addressed certain issues since the COVID virus crisis hit India as a nation. We have repeatedly and consistently maintained that the government of India must prioritize certain things, and that's the only way forward to defeat the COVID. The first problem and the most essential problem that the people of India are facing, the migrant people are facing, the poor people are facing, is one of food. That wherever you are, it is not just a question of are you in your home city, are you in your home state, but wherever you are, you should have access to food, whether you are inside the PDS system, whether you are outside the PDS system. And that is something that has been raised consistently by Congress President and the party. Second, and the most critical issue, is the economy. That what happens to the industry. Congress party, through its letter of the Honorable Congress President and various press meets, has consistently said that the stimulus to the MSME must come on time. It must not only be timely, but it should be efficient and sufficient for MSME industries to come out of this deep crisis. Third, last but not the least, consistently what Congress party has been saying, I'm happy to say that Dr. Banerjee has raised the critical problem of the shrinking demand in the market. Unless we create sufficient demand, there is absolutely no way that it is going to revive the economy. What was our suggestion? Our suggestion was crystal clear: put more money in the people of the hands. One way of doing it is availing the direct benefit transfer scheme, something called Nyay, which the UPA had proposed in his manifesto. But after the Lok Sabha elections, that never saw the day of the light because of the results. The entire idea behind it is, unless you create liquidity in the hands of the people, it is absolutely not possible to fix the demand side. Dr. Banerjee, as we saw in today's interaction, not only went to the extent of saying give 7,500 rupees to 5 crores families who are the poorest of the poor. In fact, he went a step forward
to say give 60% of the population, the poorest of the poor population, whether you need it, don't need it, put that money in. And even if you can't put it in now, the government should give an assurance that that amount of money, and he proposed something like 10,000 rupees, should come into the bank accounts. Today, we once again reiterate our demand on these four things: that sufficient food wherever you are. Number two, we want a stimulus for MSME and demand thing. More critically, सबसे अहम बात ये है that डॉक्टर बैनर्जी के साथ बात करते हुए जो डिसेंट्रलाइजेशन पे बात हुई, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी को जमीनी तौर पर लागू करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम के माध्यम से उसको जमीनी तौर पर लागू करते हैं। डॉक्टर बैनर्जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि अगर वन स्ट्रॉन्ग मैन शो कि मैं ताकतवर हूं और मैं अकेले इस समस्या का समाधान करूंगा, उससे कोविड को हराना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। Rahul Gandhi ji has consistently maintained, Congress party has consistently maintained that this has to be about playing as a team. Decentralization of power to give states more creativity is absolutely important. पर अगर आप सिर्फ creativity देंगे और state government को allocation या पैसा नहीं देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री का इंटरैक्शन मुख्यमंत्री से जो होता है वो अच्छी बात है, पर उसके बाद मुख्यमंत्रियों के माध्यम से अब अलग अलग प्रदेशों में कौन सा मॉडल तैयार करेंगे, ये बहुत जरूरी है। एंड आई वांट टू रिलाई ऑन व्हाट डॉक्टर बैनर्जी सेड। ही कैटेगोरिकली सेड गिव द एलोकेशन, things like feeding the people on a as-is where-is basis, how to deliver and what should be the scheme or the project by which the state governments deliver to the hungry and the poor must be left to the state governments. So whereas we look for help to the federal government, a one-man show is absolutely not a model that can follow it, and quote unquote, one man cannot charge into the virus. So I hope that the conversation that happens between an eminent economist and a leader of the opposition party only reiterates कि ये सब चीजें जरूरी है और इन चीजों को लागू करने की जरूरत है. There has to be more food that has to be made available. There has to be more money that has to be made available to the common man. There has to be a stimulus, a package where America is giving 10%, India should not be talking in terms of 1%. And most significantly, we have to shed the syndrome of I am the strongest and I can do this alone, and take everybody on board. So through this press meet, we reiterate these points and we request the Honorable Prime Minister to listen to the voice of reason, to listen to the voice of the people who are experts, who are eminent economists, and there is absolutely no harm in imbibing this. This is a conversation that Rahul Gandhi ji is having with leading economists only so that India as a nation can fall back on these suggestions and take this fight against COVID ahead. And I am sad to say that this morning's COVID figures tell us that this virus is not going away anywhere very soon. If any of you have a question, I'm happy to take them. Thank you, Sushmita ji. Our first request has come from IANS. Sayyid, sawal pujiye. You said that I am the strongest will not do. So do you think that Prime Minister is doing one-sided decisions and not taking confidence of the Chief Minister, because he has spoken to Chief Ministers many times in this lockdown? देखिए ये बात it's absolutely cannot be denied that Prime Minister has interacted
with chief minister. पर उस इंटरैक्शन के पीछे उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री जो मांग कर रहे हैं, जो अपना विचार उस इंटरैक्शन के माध्यम से रख रहे हैं, क्या आप उस पे अमल हो रहे हैं? अगर आज हर मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप जीएसटी का पैसा छोड़िए, हर मुख्यमंत्री पैकेज मांग रहे हैं, हर मुख्यमंत्री समाधान चाह रहे हैं, आप देखिए पिछला इंटरैक्शन कब हुआ और उस इंटरैक्शन से आज तक क्या किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रेस मीट के माध्यम से कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी से हमारी 5 मांगे थी और उनको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया? क्या आपने किसी भी मुख्यमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट देखा है? मैंने तो नहीं देखा। चाहे वो ट्रेन की मांग हो, चाहे जीएसटी का जो ड्यू है उसको रिलीज करने की मांग हो, चाहे पीपीई किट्स की मांग हो, चाहे टेस्टिंग किट्स की मांग हो, कौन सी ऐसी मांग को भारत सरकार ने पूरी तरह से पूरा किया? इंटरैक्शन शुड लीड टू एक्शन। हर इंटरैक्शन सेशन में पिछले इंटरैक्शन का एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को पेश करना चाहिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं कि मुख्यमंत्रियों से आप बात कर रहे हैं, आपको उनके डिमांड्स को मानना चाहिए। That is the whole idea. Interaction should lead to action. That's what we are saying. थैंक यू सुष्मिता जी। अगला सवाल सिद्धार्थ का है, एएनआई से। सिद्धार्थ सवाल पूछे, उसके बाद रमन जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैम, एक सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक दिल्ली में तकरीबन 5000 नंबर्स हो गए। लगातार महाराष्ट्र में, जहां आप लोगों की गवर्नमेंट में आप भागीदार हैं, आप इकोनॉमी की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इस तरफ जो है सरकार की तैयारियों को कैसे देखते हैं आप? सरकार ने जो है शॉप्स खोल दी, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के फेवर में थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या इस तरीके से आप लोग सहमत हैं? अभी शास्त्री भवन कुछ देर पहले बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पे एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जब एक तरफ सरकार ये कह रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 90% की जिम्मेदारी जनता की है, तो जो इन सरकारों की इन बात से क्या आप लोग सहमत हैं? सरकार जिस तरीके से लड़ रही है, तैयारियां हैं, और उससे सेटिस्फाई हैं आप लोग? देखिए, एक सीधी सी बात हम कहना चाहते हैं। हमने शुरू से कहा कि लॉकडाउन जरूरी है, और लॉकडाउन जो राहुल जी एक बार नहीं बार बार ही कहते हैं, एक पॉज बटन है। तो लॉकडाउन के वक्त आप क्या करेंगे, लॉकडाउन से निकलने के बाद किस तरह के आप ठोस कदम उठाएंगे, सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, पर लोगों के हेल्थ को जेपरडाइज ना करने के लिए, दोनों अहम मुद्दे हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे एक बात कहती हूं कि आपने लोगों को घरों में बंद कर दिया लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। लॉकडाउन से निकलने के बाद भी उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप अर्थनैतिक व्यवस्था के बारे में बोले या चाहे आप मेरे सेहत के बारे में बोले। अगर सरकार ने लॉकडाउन खोला है, उसको लीनियंट किया है, खोला तो नहीं है, नए गाइडलाइंस आए हैं, हमें लगता है उस गाइडलाइन को लागू करने के लिए सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। आप अगर 7 बजे से लेकर 7 बजे तक लोगों को अलाउ कर रहे हैं, गाड़ियों में 2 लोग जा सकते हैं, आपको ऑड या इवन नंबर करना चाहिए था। अगर दिल्ली की आधी आबादी भी 2 लोग गाड़ी में बैठे तो कितने लोग दिल्ली की सड़कों में होंगे? मेरा कहने का ये मुद्दा है कि हम ये मानते हैं लॉकडाउन जरूरी है, और हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन का पार्शियली फेज वाइज खोलना भी जरूरी है, बट दोनों के पीछे प्लानिंग की कमी है। सिद्धार्थ जी, आपने देखा कल दिल्ली के शहरों में क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ। आप लोग इन छोटी छोटी चीजों में प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप एक गाइडलाइन पूरे भारतवर्ष के सारे प्रदेशों के लिए निकाल देते हैं, एंड देयर इज नो माइक्रो प्लानिंग। बार बारी हम यही मुश्किल फेस कर रहे हैं लॉकडाउन के हर मुद्दे पर। द गवर्नमेंट इज लैकिंग इन माइक्रो प्लानिंग। अगर माइक्रो प्लानिंग प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार मिलके करे, इफ यू डू अ माइक्रो प्लानिंग, ये जो कल पूरे देश में हुआ ये नहीं होता, ये हमारा मानना है। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना है, लॉकडाउन जरूरी था,
लॉकडाउन का पार्शियली फेज वाइज खुलना भी जरूरत था इकोनॉमी के लिए, पर दोनों मुद्दों पर प्लानिंग में गवर्नमेंट की तरफ से कमी रही है। सुष्मिता जी, धन्यवाद। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए की बढ़ोतरी की, वैट लगाया, अभी बीजेपी का कुछ देर पहले बयान आया है कि दिल्ली सरकार का ये फैसला गरीबों की पेट पर लात मारने के समान है। उसी तरीके से जो शराब की कीमत है उसमें 75% की वृद्धि की दिल्ली सरकार ने, और आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 25% की और फिर आज जो है और 25% यानी 50% की वृद्धि की। इसी तर्ज पे ऐसा लग रहा है कि बाकी की राज्य सरकारें भी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उनकी माली हालत काफी खराब है। केंद्र सरकार उनका जो बकाया धन है वो कम से कम इस समय मुहैया कराए, लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है। देखिए, इसमें दो इश्यूज है, एक पेट्रोल डीजल का है और दूसरा जो एक्साइज का बढ़ाया है। ये आपने ही कहा रमन जी कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने दिल्ली सरकार की निंदा की। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहना चाहती हूं कि अपने गिरेबान में झांक के देखे, यही काम असम में भी हुआ है, यही काम शायद हरियाणा में हुआ है, जिसके बारे में हमारे चेयरमैन साहब ने, कम्युनिकेशन चेयरमैन हेड ने भी स्टेटमेंट दिया है। देखिए, सीधी सी बात है, डीजल पेट्रोल के दाम का सीधा सीधा इम्पैक्ट डीजल के दाम का सप्लाई चेन पे पड़ता है। डीजल एंड पेट्रोल इज कनेक्टेड टू द लाइफलाइन ऑफ द पीपल राइट नाउ। अगर आज के आप क्रूड ऑयल प्राइसेस देखेंगे इंटरनेशनल, अगर मैं उसकी पूरी कैलकुलेशन ना बताते हुए सीधा सीधा बताऊं कि इट इज कमिंग टू 11.14 पैसा पर लीटर। सिर्फ 11 रुपए 14 पैसा जो मेरी कैलकुलेशन है आज की क्रूड ऑयल प्राइसेस देख के, वो इंटरनेशनल प्राइस है। और आप देश की जनता से कितना पैसा ले रहे हैं। लॉकडाउन में एक चीज आई हैव टू हाईलाइट इट, आपने लॉकडाउन की पूरी जिम्मेदारी और पूरा बर्डन एक बार नहीं, बार बार जनता पे ही डाला। भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों के साथ अन्याय किया, जीएसटी का पैसा नहीं छोड़ा। प्रदेश सरकारों ने, जिन्होंने डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया, वही गलती कर रहे हैं कि आप जनता के ऊपर कितना बर्डन डालेंगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत निर्णय है। ये असम की सरकार ने भी किया है और इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन, ऑन एग्रीकल्चर। ये गलत निर्णय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आपने एक्साइज पे पूछा, 70% एक्साइज पे उन्होंने अल्कोहल पे प्राइस बढ़ाया। देखिए, डीजल और पेट्रोल में फिर से कहती हूँ, इट इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी, पर अल्कोहल इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, अल्कोहल इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइवलीहुड। आप इस पे 70% बढ़ाए या 80% बढ़ाए, वो हम प्रदेश की सरकार पर छोड़ते हैं। पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये चिंता जरूर है कि जहां डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, जहां लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद किसी को आपने 500 रुपए और किसी को आपने 1000 रुपए दिया है, वो अगर जाके शराब में खर्चा होगा 25% भी, लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप एक्साइज बढ़ाए शराब पे या जो भी करे, कुछ जिम्मेदारी अपनी निभाए टुवर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस, और ऐसा ना हो कि घर के लोग जो सीमित उनके पास रोजगार का साधन है वो भी शराब में डाल दे। ये चिंता का विषय, और शराब इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। थैंक यू मैम। आई थिंक अगला सवाल अनुराग ढांडा जी इज प्रोबब्ली वांटिंग टू आस्क। अनुराग। सुष्मिता जी, एक दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सिख संगत में कोरोना के फैलने का जिक्र किया है, तो क्या तबलीगी मरकज से कंपैरिजन करने की कोशिश है? ये किस तरीके से देखती है पार्टी? सॉरी, क्या ट्वीट किया उन्होंने, मैं समझ नहीं पाई। सिख संगत में जिस तरीके से कोरोना के मामले फैले हैं उसका जिक्र किया है उन्होंने अपने ट्वीट में, क्या ये तबलीगी मरकज से कंपैरिजन करने की कोशिश है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि
जो आज हमारे देश के साथ नहीं पूरे विश्व के साथ हो रहा था, ना किसी ने सोचा था ऐसे होगा, ना किसी को उम्मीद थी कि इस तरह की इमरजेंसी लाइक सिचुएशन पूरे विश्व में हो रहा है। और इन हालात में किसी का कोई भी धर्म हो, कोई किसी भी जात का हो, कोई किसी की कोई भी भाषा हो, कोई भी जेंडर हो, ये सब मैं मानती हूं कि कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी पार्टी का, किसी भी दल के नेता अपने व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म से या किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से अगर इस डायरेक्शन में, इस दिशा से कोई बात करे, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के स्पोक्स पर्सन होने के नाते से मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक सेकंड इन चीजों पर टिप्पणी करके मैं अपना वक्त नहीं इसमें डालना चाहती। इस वक्त इस देश में जो चल रहा है बहुत सारी चिंताजनक बात है। मेरे आप सबसे निवेदन है, इन चीजों को ना मीडिया कवरेज मिलना चाहिए और ना इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। Thank you, ma'am. I think we have run out of questions now. विनीत जी, और सवाल है नहीं? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, we can wind up, madam now. एक चीज प्रणव जी मैं कहना चाहती हूँ जी कि कुछ ट्विटर हैंडल्स पे कहा, सामिया यू वांट टू से समथिंग? हाँ, एक क्वेश्चन था, सॉरी। Yes, I have one question, please. Samia ji, ma'am, can I ask you first? Yeah. Ma'am, I wanted to ask you about the statement that came off Madam Sonia Gandhi yesterday as far as the Congress party willing to bear the expenditure for the transportation of all the migrant workers. The BJP has been quick to react and say that the state government and the central government will be sharing that cost, and the Congress party has been misleading to score political brownie points on the issue of migrant workers. What do you have to say about it, ma'am? Because the Railway Ministry's circular categorically mentions a whole segment on sale of tickets. However, there have been reports of coming out of the Railway Ministry that now suggests that 85% would be borne by the central government and 15% will be borne by the state governments. Rather, they also say that it's only the Congress-ruled states or the opposition-ruled states who are charging the migrant workers, like in Rajasthan, in Maharashtra, and in Kerala. What do you have to say, ma'am? Samia, thank you. It's a pertinent question. You see, old habits die hard. You see, there was a time when we called this government a Jumla Sarkar. It is very simple, Samia. All controversies will come to an end. Please ask the Railway Ministry, the circular they issued on 2nd May, which you all have seen, where at clause 11, I've highlighted it, which says sale of ticket. Simply issue a one-line circular saying we are not charging. Simple. A prime minister has a following of millions. The BJP party talks about having the largest political party in this country. Issue one single unilateral clear statement that you are not charging. Till now it hasn't come. And Samia, let me also tell you this whole jumla of 85% subsidy is the subsidy that was built into the train tickets before COVID. And I challenge this government. I'm challenging the Prime Minister, the Railway Minister, issue a one-line circular saying what your spokesperson and your mouthpieces are saying in social media. Come out with it and let the nation know what you are doing. And I am ashamed to say that the government needs to lie on an issue which is a matter of life and death for lakhs of migrant workers is the most embarrassing moment for this nation. And I assure you, Samia, that the news that was shown about Rajasthan, Maharashtra, and Kerala is misleading for two reasons. There are enough videos out there where people from UP have had to pay. Gujarat has collected the highest amount of money from migrants. Karnataka has collected the highest amount of money from the markets. If that was shown, then this narrative that has been shown yesterday is extremely wrong. And I take pride. मुझे गर्व है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने ट्विटर पे और सर्कुलर के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से माइग्रेंट वर्कर्स को कह दिया है कि आपको हम अपने घर तक पहुंचाएंगे और निःशुल्क पहुंचाएंगे
और कांग्रेस पार्टी उसका खर्चा उठाएगी। इसी तरह का ट्वीट अगर प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर कर दे तो ये किस्सा ही खत्म हो जाए। प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट इट इन हिंदी? बोला ना हिंदी में विनीत जी। मैं प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्रालय से एक सीधा सा निवेदन रखती हूँ कि डॉक्टर बैनर्जी ने कहा कि वी शुड शो ब्रेवरी। अब साहस दिखाने का वक्त है, मुकरने का वक्त नहीं है। तो साहस करके एक सीधा सर्कुलर निकालिए, 2 पंक्ति लिख दीजिए कि हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। और 2 मई का जो सर्कुलर जो गृह मंत्रालय से आया है और रेलवे मंत्रालय से आया है उसको रिवोक करिए और 2 पंक्तियों का एक सर्कुलर निकाल के देश के अब गरीब जनता से कह दीजिए, कामगारों से कह दीजिए कि हम आपको निःशुल्क अपने घर तक पहुंचाएंगे। बस इतनी सी बात है। Thank you. We're done? Yeah. Thank you. Okay. Thank you everybody for joining. Thank you.